समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે ઓડિશાથી, જ્યાં ભીષણ ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાઈ। ઓડિશાના બાલાસોરમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટનામાં 233 લોકોના મોત થયા છે। 3 ટ્રેનો એકબીજા સાથે ટકરાઈ અને આ દુર્ઘટના બની। ટ્રેન દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 900 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તેવી પણ જાણકારી મળી રહી છે। છેલ્લા 13 કલાકથી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન યથાવત છે, પરંતુ ગઈકાલે સાંજે 7:20 આ 3 ટ્રેનો એકબીજા સાથે અથડાઈ ટકરાઈ એટલે જ આ અકસ્માત સર્જાયો। પહેલા તો ટ્રેન પાટા પરથી નીચે ઉતરી, જે બીજી ટ્રેન સાથે ટકરાઈ એ પણ ટ્રેન નીચે ઉતરી ગઈ પાટાથી અને તે માલગાડી સાથે ટકરાઈ। આ રીતે અકસ્માત સર્જાયો। અંધારાના કારણે પહેલા તો રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ થઈ, જો કે અત્યારે પણ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન યથાવત છે। કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ત્યાં પહોંચ્યા છે। ટ્રેન દુર્ઘટનાને લઈને ભાજપે આજના દેશભરના તમામ કાર્યક્રમો રદ કર્યા છે। સાથે જ એનડીઆરએફ, ઓડીઆરએફ અને ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે છે। ત્યાંના જે સ્થાનિક લોકો છે તે પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે તમામના જીવ બચાવી લેવાય। જે લોકો અત્યારે અંદર ફસાયેલા છે તેમને બહાર કાઢી લેવાય। ઉચ્ચ સ્તરીય ટીમ પણ અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહી છે કે તમામ લોકોને બહાર કાઢી લેવામાં આવે। પીએમ મોદીએ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે। તમામ નેતાઓ શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। આ સાથે જ રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જે મૃતક છે તેમની માટે પણ 2 લાખની સહાયની જાહેરાત કરી। પીએમ રાહત ભંડોળમાંથી ઇજાગ્રસ્તોને 50,000ના વળતરની સહાય પણ કરવામાં આવશે। કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે કે કઈ રીતે અકસ્માત સર્જાયો, કઈ રીતે આ દુર્ઘટના બની અને આ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી કેવી રીતે। બેંગલુરુ હાવડાની આ ટ્રેન હતી જે પાટા પરથી નીચે ઉતરી ગઈ। તેણે પછી અન્ય ટ્રેનને પણ ટકરાતા જ તે પણ ટ્રેન નીચે ઉતરી ગઈ પાટા પરથી અને ત્રીજી માલગાડી ટ્રેન પણ નીચે ઉતરી ગઈ અથડાવાના કારણે જ। પીએમ રાહત ભંડોળમાંથી મૃતકોના પરિવારને 2 લાખની આર્થિક સહાય ચૂકવવામાં આવશે। તો આપ ગ્રાફિક્સની માધ્યમથી જ સમજી શકો છો કેવી રીતે અકસ્માત સર્જાયો। જે કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ છે તેને યશવંતપુર હાવડા એક્સપ્રેસ ટકરાઈ। પહેલા તો તે જે પટરી હતી તેના પરથી નીચે ઉતરી અને અથડાઈ ગઈ કોરોમંડલ એક્સપ્રેસને। ત્યારબાદ જે માલગાડી ટ્રેન હતી તેને પણ એ ટકરાઈ। તો યશવંતપુર હાવડા એક્સપ્રેસ ટ્રેન જેનો આ દુર્ઘટના સર્જાઈ, કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનની પણ તે ટકરાઈ ગઈ। પાટા પરથી નીચે ઉતરતા જ તે અન્ય ટ્રેન સાથે ટકરાઈ ગઈ। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई वो समझा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय खुद ट्रेन पर चढ़कर पूरी ट्रेन की स्थिति, आसपास की किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हादसा हुआ है, ये खुद जानने के लिए इस समय मालगाड़ी पर चढ़ रहे हैं और इस मालगाड़ी से ही दोनों ट्रेन टकराई हैं। सामने आपको कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन दिख जाएगा और ठीक उसके सामने ये बोगी। किस तरह से इतनी बड़ी ट्रेन, दोनों ट्रेन आपस में भिड़ी और इतने वजनदार ट्रेन जिस तरह से भिड़कर यहाँ पर तबाही मची है, जिस तरह से नुकसान हुआ है और इतने लोग घायल हुए हैं। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, जिसमें किस तरह से एक और ये ट्रेन का नजारा देखिए, जरा स्थिति देखिए क्या है। और यहीं पर इसको बाहर वाली बोगी को देखकर इस समय रेल मंत्री अंदर मालगाड़ी की बोगियों को देख रहे हैं। उसके पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी को देखा, उसके इंजन को देखा, उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की और आरपीएफ के कई आला अधिकारी यहाँ मौजूद, रेलवे बोर्ड के मेंबर मौजूद, ट्रेन की स्थिति समझने की कोशिश। इस समय इस ट्रैक को खोलना सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे पहले ये करना है। दूसरा, जांच भी होगी कि आखिरकार इस हादसे का कारण ये किसकी गलती से हुआ है। इस समय वर्तमान में ये मालगाड़ी जो सामान इसमें सारा रखा हुआ है, इसमें कोयला और बाकी सारी सामान यानी कि जाता है, इसका वजन 100 टन से ऊपर होता है
और इसके पर खच्चे उड़ गए हैं। और यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऊपर पूरा जायजा लेते हुए, समझते हुए कि क्या स्थिति है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ, वो इस बोगी पर हैं अभी, इस बोगी पे, और इस बोगी में साथ ही साथ एक और कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी है और दूसरी ओर ये देखिए पूरे सारे पदाधिकारी अभी उतरते हुए इसमें जाकर देखना, समझने की कोशिश कि क्या स्थिति है। रेल मंत्री का खुद आना, एक और जहां पर विपक्ष बार बार दबाव बना रहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस हादसे की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर खुद इस मालगाड़ी की बोगी में जाकर देखते हुए, समझते हुए, बतौर ब्यूरोक्रेट, बतौर रेल मंत्री बड़ी बड़ी भूमिकाओं में आपने देखा है, लेकिन आज इस हादसे को यहाँ पर रेल मंत्री इस समय एक बोगी से दूसरी बोगी पर जाते हुए और ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिरकार हादसे का जिम्मेदारी है किसकी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालासर, एबीपी न्यूज। जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था, अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं और ऊपर पूरी बोगी, वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के पर खच्चे उड़ गए हैं।